हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is good. It is he who made us, and we are his pastures. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generation. अजीजों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मुबारक नाम में जय मसीह की। I greet you all in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. As we all know that we are spending our time, our lives in the pandemic juncture. जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस महामारी के काल में, कोविड के काल में अपने जीवन को बिता रहे हैं, अपने समय को हम व्यतीत कर रहे हैं। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज की सुबह हमें ये फिर से मौका दिया कि हम लोग सब इकट्ठा हों और ऑनलाइन वर्शिप के द्वारा हम लोग सब वर्शिप के अंदर सहभागी हों। और ये परमेश्वर की ओर से हम सबको एक बहुत ही बड़ा, एक आप कह सकते हैं एक वरदान है, एक गिफ्ट है कि क्या ही मनोहर बात है कि हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर को महिमा दें, उसको धन्यवाद करें। This is such a wonderful joy and wonderful privilege has been given by God to us. So we all are gathered together in one place and we are indulging ourselves into the worship service. And I hope and this worship service may bring hundredfolds of fruits and blessings in our lives. And
God bless you all throughout this whole worship service. Let us begin our worship with the word of prayer. Let us pray. Dear gracious Heavenly Father, we are very thankful to you, Lord, for this such wonderful morning that you have given us and added in our lives. And thank you for your grace and for your mercies, Lord, as you kept us safe from every harm and from every dangers. And Lord, as we all are indulging ourselves in this worship service, Lord, be with us. And Lord, let your glory be shine upon all of us. And today's worship, today's songs, today's sermon may acceptable unto you, and it may bring your glory, and it may bring hundredfolds of fruit in our lives, Lord. And you will be exalted through our deeds and actions. Thank you, God, for everything. And Lord, I commit each and every one of us into your mighty hand, and be with us throughout this whole worship service. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, अब यह वक्त होगा कि हम अपने पहले गीत को गाएंगे, जो कि पाया जाता है हिंदी मेथोडिस्ट हिम्नल सॉन्ग नंबर 311 तेरा हूं आए रब सुनता तेरी बात, और इंग्लिश के अंदर 159 I am thine, O Lord, I have heard thy voice. Let us sing this song and let us glorify God through this song. तेरा हूँ ऐ रब सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खा। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूँ दिल से ठीक हो। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खा। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। कैसी राहत काज़िल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुज़ूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से का। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खा। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पर।
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। अब ये वक्त होगा कि हम रसूलों का गीत है, एक लोग सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। We will affirm our faith before God by reading Apostles' Creed, which is found in English Methodist Hymnal, section number 738, and in Hindi Methodist Hymnal, page number 1. आइए हम लोग अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करें और रसूलों का कीदा हम लोग सब एक साथ मिलकर कहें। मैं इतिकाद रखता हूं खुदा कादिर मुतल्लक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदुस से मुजस्सिम होकर कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतल्लक के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहां से वो जिंदा और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इतिकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाकलिसे आम पर, मुकद्दस रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म की जी उठने और अब्दी जिंदगी पर। आमीन। अजीजों, अब यह वक्त होगा कि हम अपने स्वरों को परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएंगे और हम लोग दुआ मांगेंगे और हम उन तमाम बातों को अपनी दुआ में याद रखेंगे। हम लोग अपने चर्च के लिए, अपने चर्च की नीड्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो ग्रसित हैं इस कोविड महामारी से, हम लोग दुआ करेंगे। हमारे पास्टर्स के लिए, कॉन्फ्रेंस लीडर्स के लिए और अपने भारतवर्ष के लिए, हम लोग अपने राज्य के लिए, अपने शहरों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और पूरे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे कि ये जो कोविड जो अभी वापस से जो राइज हुआ है, ये परमेश्वर इसको थामे और परमेश्वर इसको हटाए। Now it's time to pastor prayer, and we will keep all the things in our prayer. We will put supplications before God, and we will put supplications and our request unto the feet of the Lord. We will remember our church needs. We will remember all the committees of the church. We will remember our community. We will remember our people, congregation. We will remember conference leaders. We will remember missionaries, pastors in our prayer. And especially we will pray for those who are sick and facing COVID problem in their lives. So Jesus, He is the healer, may heal them, and so they may know the glory of God, and they may know the healing power of God in their lives. Let us pray, and followed by Lord's Prayer. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ मांगें। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जबकि आपने हमें ये मौका दिया कि हम एक बार फिर आपके चरणों पर अपने जीवनों को लेकर आएं और आपसे हम दुआ मांगे। और पिता, क्या मुबारक लोग हैं जो आपको याद करते हैं, जो आपके पीछे चलते हैं और आपको ही अपना धाम मानते हैं पिता। और हम धन्यवाद देते हैं कि आप उन लोगों के साथ रहते हैं, मौजूद हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद खुदा। प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के लिए, हमारे चर्च की कमिटीज के लिए, कांग्रीगेशन के लिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं तीनों कांग्रीगेशंस के लिए पिता, यूथ के लिए और हमारी बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बुजुर्गों के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। सबको आप आशीषित करें और पिता इस कोविड के काल से, महामारी से छुड़ा कर रखें, उनकी जरूरतों को पूरा करें। जैसा कि लॉकडाउन का समय है, हम जानते हैं कि क्या क्या होता है पिता, मगर आप महान परमेश्वर हैं जो सदैव रहमत फरमाते हैं। आप अपनी रहमतों का बाड़ा, अपने अनुग्रह का बाड़ा आप सबके ऊपर बांध के रखें पिता और आशीष दें। हम दुआ चाहते हैं हमारे कॉन्फ्रेंस लीडर्स के लिए, उनको भी हम आपके आगे रखते हैं पिता। जैसा कि पिछले सप्ताह सुनने में आया कि काफी जो पास्टर्स थे बीमार हुए, ग्रसित हुए और काफी जो लोग थे वो इसकी चपेट में आए, मगर फिर भी पिता कुछ जो लोग थे वो रैलत कर गए। वो आपके पास हैं, मगर जो अभी भी हैं पिता उनको आप चंगाई दें, उनको छुटकारा दें, ताकि आपके नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा प्रकट होने वाली हो सके पिता। हमारे बिशप सर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, मैडम के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता। दोनों को आपने ये प्रिविलेज दिया, मौका दिया कि वो दिल्ली एपिस्कोपल को जब वो सर्व करते हैं पिता,
और हम धन्यवाद देते हैं एक ऐसी लीडरशिप के लिए जो आपके द्वारा संभव हो पाई, और जिसने पिता, जिस लीडरशिप ने पिता इसको आगे बढ़ाया, उन्नत किया पिता, उनको आप बहुतायत से आशीष दें। उनकी पूरे फैमिली को भी हम आपके हाथ में देते हैं, तमाम कॉन्फ्रेंस लीडर्स को भी हम आपके हाथ में देते हैं, सबको आशीष दें पिता। एंड लॉर्ड, वी स्पेशली प्रे फॉर आवर पास्टर्स and we pray for pastor in charge, Reverend Dr. John R. Vishwas, and we commit him and his family into your mighty hand, Lord. As your servant is going to share your words today, Lord, be with him and touch his throat, touch his tongue, Lord. And so he won't speak, but your Holy Spirit will speak through him. And Lord, give us the spirit of comprehension, so whatever we may grab, whatever we may hear, Lord, it may bring glory to you. And Lord, also we commit his problems into your mighty hand, Lord. You are the good take care, Lord. And Lord, be with him and remove all the obstacles and hurdles from his life, Lord. And Lord, give us your wisdom and your knowledge so he may follow you all the days of his life. And thank you, God, for the such wonderful leadership that you have provided to AMC. And Lord, as he serves, Lord, the congregation of AMC, Lord, be with him and guide him abundantly. And Lord, also we pray for Pastor Man Kumar Rai. And Lord, thank you for his life and dedicated life that you provided to AMC, Lord. Lord, be with him, and we commit his family into your mighty hand. And Lord, and especially we pray for his son Aman. Lord, as we are praying for him continuously. And Lord, be with him and heal him. And Lord, use him for your vineyard, for your kingdom mightily, Lord. And Lord, we pray for Pastor Sharon and his family, and we commit them also into your mighty hand, Lord. Thank you for giving us such privilege to serve you and Lord, congregation through this platform. And thank you, God, for such wonderful leadership that you have provided me. And Lord, also we commit our lives into your mighty hand, Lord. Use us mightily for your vineyard, for your kingdom. Lord, we especially pray for those who are sick, those who are facing problems in their lives. Lord, whether the problems, Lord, comes in our lives, but we know that you are all the good God who stands firm with us. And Lord, we commit them and we commit their lives into your mighty hand, Lord. You are the greatest healer. Nothing is bigger than you, O Lord. You are the greatest God and the master of this world and of this universe, Lord. Be with them and heal them, Lord, and touch them through your healing hands. And Lord, also we commit their lives and we commit their families into your mighty hand, Lord. और प्रभु, हम उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं जो अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनके साथ भी आप रहें, उनको भी आप आशीष दें और पिता उनकी कमी घटी को आप पूरा करें। हम अपने भारतवर्ष के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम अपने पिता सब चीजों को हम याद रखते हैं। पिता, ये जो कोविड की महामारी आप इसको हटाएं और पिता होने दीजिए कि आपका शांति, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा पूरे देश के अंदर, पूरे जगहों के ऊपर आने वाला हो सके, जो तेरी महिमा को जाने। पिता, जो भी भूल हुआ हो, पाप हुआ, क्षमा कीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं जो लोग अपने बर्थडेज को, वेडिंग एनिवर्सरीज को इस वीक के दौरान मनाते हैं, उनको भी हम आपके हाथ में देते हैं। उनको भी आप इस्तेमाल करें पिता, और उनको भी आप बहुतायत से आशीष दें पिता। और पिता, आज के वचन का बोला जाना और आज के गीतों का गाया जाना सब आपको ग्रहण योग्य हो पिता। धन्यवाद देते हैं राजा यीशु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, जैसा कि आपने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा और हमेशा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अब यह वक्त होगा कि हम कुछ गीतों के माध्यम से परमेश्वर की आराधना को करेंगे, और मैं निवेदन करता हूं हमारे चर्च क्वायर से कि वो प्रेज एंड वर्शिप के माध्यम से अगुवाई करें, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज हमें समय दिया
आज हम उसके चरणों में आ सके, उन्होंने हमें स्वस्थ रखा। प्रभु को धन्यवाद करते हैं हम। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। तो आइए हम सब लोग इकट्ठा होके प्रभु की स्तुति करें और गीत गाएं जिसके बोल हैं, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। सच हमारा परमेश्वर कितना भला है कि उसने हमें संभाल के रखा। तो आइए हम सब लोग इस गीत को गाएं। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत है, तेरी नाम में तू दियाता है। कठिन समय में तू मजबूत है, तेरी नाम में तू दियाता है। तेरी दुहाई सुनता, तेरा प्रभु कभी नहीं सोता। तेरी दुहाई सुनता, तेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कहता है नहीं छोड़ूंगा, कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता।
कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए कि प्रभु ने हमें ये गीत दिया। सच हमारा परमेश्वर कितना भला है, उसने हमें संभाला है, जीवित और स्वच्छ रखा है और वो हमारा शांति दाता है। तो आइए हम सब अपना दूसरा गीत गाएं जिसके के बोल है मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। 36 नंबर सॉन्ग है, 36 नंबर सॉन्ग है। यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धरती में तूने जन्म लिया है, धरती में तूने जन्म लिया है, धूलि पे किया विश्राम, धूलि पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। तो अब हमारा जो अगला सॉन्ग है जिसके बोल हैं शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में। तो आइए हम सब लोग इस गीत को गाएं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत
सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, शत्रुओं और सब मुसीबतों से आँखी पुतली कैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, शत्रुओं और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन की ओर जाएं, हमारा जो अगला गीत है ये कहता है, ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। आइए हम सब लोग प्रभु के गुणगान करें, उसके स्तुति करें, उसके गीत गाएं। और इस गीत के साथ आप सब हमारे साथ गा सकते हैं। आप सबको ये गीत आता होगा। आइए हम सब लोग मिलकर गाएं इसकी। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखोगे वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उसी तरह से हम सब है आए, हम तो सदा के हम गीत गाए। आप शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरे
जीतते दयालु प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद शुक्र आपकी तारीफ करते समय के लिए परमेश्वर। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको मौका दिया प्रभु कि इस वक्त हम आपके चरणों में आ सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के समय के लिए प्रभु, आज के वचन के लिए परमेश्वर, कि जो प्रभु आपके भक्त द्वारा हम सबको मिलता है परमेश्वर, उन्हें आप अपने आत्मा में भरे प्रभु जी, वो वचन हमें आपकी ओर से मिल सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम सबको अपने निगरानी में रखें, इस बीमारी से, इस दुख तकलीफ से प्रभु जी हमारे पूरे कलीसिया के एक मेंबर को, एक एक बच्चे को आप बचा कर रखें परमेश्वर। आप सबके को अपनी दया और अपना अनुग्रह की दृष्टि को बनाए और सबको प्रभु अपनी आशीष और अपनी बरकत दे प्रभु जी। जो परिवार के अंदर जो लोग नहीं रहे प्रभु इस दुनिया में, और प्रभु जी उन परिवारों को अपनी शांति और अपना इत्मीनान दे प्रभु जी। बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, क्योंकि हमने अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा है, आमीन। अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम बाइबल में से निकाल लेंगे जो कि आज के मनन के लिए लिया गया है। भजन संहिता उसका 91 भजन 1 से लेकर 6 वचन तक। For today's scripture portion has been taken from the book of Psalms number 91 verses beginning from 1 to 6. First of all, I will read in Hindi and then I will read in English. सबसे पहले मैं हिंदी में आपके सामने पढ़ूंगा और फिर मैं इंग्लिश में आपके सामने पढ़ूंगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, ये मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वे तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वे तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। In English, it is written over here in Psalms 91, 1 to 6. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. And this is the word of God, and may God bless us by hearing and reading His holy words. Amen. अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर के वचन को उसके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास के द्वारा सुनेंगे। एंड नाउ इट्स टाइम टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम हिज हम्बल सर्वेंट रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास, एंड आई मे रिक्वेस्ट हिम, प्लीज टेक योर टाइम एंड शेयर द गॉड्स वर्ड विद अस। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए और आज के वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। इन दिनों में हम एक ऐसे दौर से निकल रहे हैं, या हम कहें कि ये पिछले साल की पुनः आवृत्ति है। Dear friends, we want to praise the Lord for this time that He has given to us. This year also, last year is repeated, but this year is more severe because already some of the people have gone to be the Lord, and some of them are seriously sick, and we do not know what the future holds for us. मित्रों, पिछले साल जो कुछ हुआ इस साल भी हो रहा है, और अभी तक लॉकडाउन नहीं लगा है। पिछले साल तो मैं सोचता हूँ कि मार्च महीने के लास्ट वीक से लॉकडाउन लग गया था। अब ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में पिछले दिनों 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा है और सब कुछ बंद है। हमारे जीवन में ऐसा समय जब आता है तो हम सचमुच में उत्तर विहीन हो जाते हैं। We don't have any answer when we have this type of situation. We may think why this type of thing have come, why this situation have come, what is the reason, ये कारण क्या है। और इन्हीं के उदयपुर में हम वचन को जब देखना चाहते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। आज हम उसी वचन पर ध्यान देंगे जो पिछले साल मैंने आपको याद दिलाया था, मार्च के महीने के 15 तारीख के बाद। और वचन चिर परिचित है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये एक भजन है जिसको हमारे लिए
परमेश्वर के जन ने लिखा, और निश्चित रूप से ये भजन हमारे लिए परमेश्वर के वचन को स्पष्ट करता है। अगर आप भजन 90 देखें तो उसका लेखक उसमें लिखा है मूसा। इफ यू सी द राइटर ऑफ द Psalm 90, it is Moses. And this psalm also considered to be his psalm because the language, the message, and the assurance are the same that God is with us. अगर आप दोनों भजनों को कंपेयर करें 90 और 91, तो करीब करीब वही बातें हैं जो इन दोनों भजनों में एक साथ पाया जाता है। भजन 90 में मूसा कहता है, परमेश्वर तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना, और इसके पहले कि अब पहाड़ उत्पन्न हुए तू परमेश्वर है और तूने पृथ्वी और जगत की रचना करी। इफ यू सी द Psalm 90 where Moses says, the writer says, Lord, you have been our dwelling place in all generations, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. और इसलिए जब आज के वचन पर हम ध्यान देंगे तो हमारा ध्यान इन बातों पर लगा रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए संसार, कठिनाई पर कठिनाइयां आ रही हैं, और इस साल की इस महीने की शुरुआत से ही हमारे मसीह समाज के गणमान्य लोग प्रभु के पास चले गए, कुछ जवान चले गए, कुछ अधेड़ चले गए, और ये सिलसिला जारी है और हम नहीं जानते सिलसिला कब रुकेगा। लेकिन इन सिलसिलों के बीच में परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, और वहां भजन कर लिखने वाला मूसा कहता है, परमेश्वर आप हमारे लिए धाम है, यू आर आवर ड्वेलिंग प्लेस। इसलिए आज प्रातःकाल जबकि हम प्रभु की आराधना के लिए आए हैं, today when we have come here for the worship of the Lord, we are reminded that our God is great God, He is mighty God, and He is the one who protects us and leads us day by day. And therefore, with this understanding and with this introduction, I like to start today's message. Psalm 91, भजन 91 जहाँ लिखा है, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. यहाँ लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब बाइबल में अगर हम देखें कि परमेश्वर के धाम में कौन रहेगा, उसके बारे में कुछ बातें दी गई है। मैं चाहूंगा कि हम इसको देखें। ये हमारा इंट्रोडक्शन है, और भजन संहिता के अंदर हम इस बात को पाते हैं, और यहाँ लिखा है स्पष्ट रूप से कि वो कौन कौन लोग हैं जो परमेश्वर के पवित्र भवन में रहने पाएंगे, या वो कौन से लोग हैं जो परमेश्वर के साथ निवास करेंगे या निवास करते हैं। अगर आप भजन देखें, भजन दाऊद का भजन 15, तो वहां पहले दूसरे तीसरे पद में और चौथे पद में कुछ बातों का वर्णन है जो इस बात को दर्शाता है कि वो कौन से लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं या रहेंगे। यह भजन 15 में लिखा है, ओ लॉर्ड, हु शैल sojourn in your tent, who shall dwell on your own holy hill, who will walk blamelessly and does what is right, he who speaks truth in his heart। यहाँ लिखा है, दाऊद का भजन 15 है। दाऊद कहते हैं, परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा। यहाँ दो चीजें हैं जिसको याद रखिएगा, तंबू और लिखा है पवित्र पर्वत। तंबू हमारे आज के समय में हमारे संसार के घर को दर्शाता है। बाइबल में लिखा है कि जब ये तंबू का सा घर गिराया जाएगा, और इन दिनों में जब हमारे लोग जो प्रभु के प्रिय लोग हैं दुनिया से जा रहे हैं, तो हम इतना ही कह सकते हैं कि उनका दुनिया का घर गिरा दिया गया। और चूंकि उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया था, प्रभु को जाना था, they had experienced in their lives the abundance of His blessing, the forgiveness of our sins in and through the blood of Jesus Christ. They will dwell
in the house of the Lord. यहाँ लिखा है, who shall dwell on your holy hill? That is our permanent place. वो एक विश्वासी के लिए अनंत काल की जगह जहां वो रहते हैं या रहेंगे. प्रभु यीशु मसीह ने इसके लिए कहा था ना, यूहन्ना उसके 14 अध्याय के 1 और 2 पद में उसने कहा था, Lord said in John's Gospel chapter 14, 1 or 2 verse, let your heart not be troubled. You believe in God and believe in me also. प्रभु ने साफ साफ कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो. मतलब यहाँ पर यह है कि वे लोग जिन्होंने संसार में उसके साथ रहने का निर्णय लिया, अनंत काल तक प्रभु के साथ वही रहेंगे. जिनके पाप क्षमा हो गए प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, लहू के द्वारा, जिन्होंने अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंप दिया, रोमियो उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद के आधार पर वो अनंत काल तक प्रभु के पास रहेंगे. Those who have decided in this world to live in his fellowship, they are the one who will live for eternity in his dwellings. There's no doubt, friends. We don't doubt. हमारे मन में कोई डाउट या शक नहीं है. अगर कोई शक है तो इसलिए क्योंकि हम प्रभु के वचन को पढ़ते नहीं हैं, प्रभु को नहीं जाना है, प्रभु के प्रेम को नहीं चखा. इसलिए वो जिनके जीवन में प्रभु ने काम किया है, जिनके पाप क्षमा हुए हैं, जिनके जीवन को पवित्र आत्मा चलाता है और जो प्रभु के भय में रहते हैं, वो प्रभु के उस निवास में अनंत काल तक निवास करेंगे. अब यहाँ पर उनके जीवन की खासियत दी गई है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट देयर लाइफ इज मेंशन हियर. कौन उसके पवित्र पर्वत पर निवास करेंगे अनंत काल तक? यहाँ लिखा है, वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता. He who walks blamelessly and does what is right. वो व्यक्ति जो उसके साथ चलता है, पूरी तरीके से खराई से चलता है और धार्मिकता के काम करता है. दूसरी बात है लिखा है, and speaks truth in his heart, और हृदय से सच बोलता. सत्य यीशु मसीह है. अगर आपने और मैंने उसको आत्मसात किया है तो हम सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और ये हमारे जीवन की गवाही है. This is a true witness about our life. We talk truth because we talk Jesus Christ. Truth is a witness and witness is Jesus Christ. इसलिए इब्रानियों के 12 अध्याय के अंदर लिखा है पहले और दूसरे पद में, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की तरफ ताकते रहो, और जब ऐसा करते तो उसमें हम बोलते भी हैं. और यहाँ लिखा है कि हम वो व्यक्ति हैं जो खराई से चलते हैं और धार्मिकता का काम करते हैं, हृदय से सच बोलते हैं. फिर आगे लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता. Who does not slander with his tongue. Slandering, बुराई करना. हमारे जीवन की ये विडंबना है कि हम दूसरों के बारे में बुराई सुनना चाहते हैं, करते हैं, और अपने बारे में अच्छी बातें बोलते. ये हमारे जीवन की परिपाटी है, ये हमारे जीवन की सच्चाई है. इसलिए भजनकार दाऊद कहता है कि परमेश्वर आपके पवित्र पर्वत पर वही रहेगा जो अपनी जीभ से बुराई नहीं करता, निंदा नहीं करता, और जो अपने मित्र की बुराई नहीं करता है और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता. एंड डज नो इविल टू हिज नेबर, नॉट टेक्स अप ए रिप्रोच अगेंस्ट हिज फ्रेंड. तीसरी बात यहाँ दाऊद कहते हैं, जिसकी दृष्टि में निकम्म होने से तुच्छ है, जो यहाँ के डरियों का आदर करता है और जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े. The third thing is very important about the person who will live in the house of the Lord forever and ever. And what is the quality? In whose eyes a veiled person is despised, but who honors those who fear the Lord. जो प्रभु के साथ चलते हैं, उसका वचन प्रचार करते हैं, वो लोग कि वो आदर करता है, सम्मान करता है. और ये हमारे जीवन की बुनियाद की बात है. हम जो ऐसा करते हैं बच्चों को भी सिखाते हैं. अगर हमारे जीवन में बच्चे देखेंगे कि माँ बाप पासबानों की, प्रभु के सेवकों की, प्रचारकों की, मिशनरीज की सेवा को देखते हुए उनका आदर करते हैं तो वो सीखते हैं. लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो नहीं सीखेंगे. इसलिए हम इस बात को याद रखें. तीसरी मुख्य बात है. और एक और बात यहाँ पर है
और वह चौथे पद में लिखा, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। He who swears to be his own heard and does not change. जो शपथ अगर कुछ बात बोल दी तो उसको बदलता नहीं, उसी में काम रहता। इसके बाद आगे बहुत सारी बातें लिखी है जिस पर हम गौर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ जो भजन है उस भजन के अंदर मूसा कहते हैं कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। उसकी जीवन का जो ठिकाना है, will abide in the shadow of Almighty. Abiding in the shadow of Almighty. How many times they are praying nowadays here? कितने बार इन दिनों हम प्रार्थना करते हैं, चाहे हम प्रार्थना लिखते हैं या बोलते हैं कि परमेश्वर जिस प्रकार से इन दिनों में जबकि चारों तरफ परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, जिस प्रकार से मुर्गी अपने बच्चों को एकत्रित करती है अपने पंखों के आड़ में, प्रभु आप हमें छुपा लें। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि उसके अलावा, उसके बगैर हमारी सुरक्षा कहीं नहीं है। ना वो धन में है, ना वो घर में है, ना वो संसार की वस्तुओं में है, ना कि वो आपकी शिक्षा में है, ना कि नौकरी में, किसी और बात में। आपकी सुरक्षा, मेरी सुरक्षा केवल और केवल परमेश्वर के संगति में, उसके द्वारा हम ठिकाना पाते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है, will abide in the shadow of Almighty, और उसके छत्र छाया में निवास करना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। मित्रों, इस बात को यहां हमें समझने का, ये पहली बात हम देख रहे हैं कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान पर बैठा रहता है, वो पहली बात सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। इस दुनिया में ठिकाना पाएगा और इसके बाद भी ठिकाना पाएगा। पिछले दिनों एक शोक सभा में मैं भाग ले रहा था, जो एक धार्मिक स्थान में किया जा रहा था, जहां पर बहुत लोग आए थे। और वो कई लोगों ने उस व्यक्ति को, जवान व्यक्ति था, करीब 33 साल का, जो दुनिया से चला गया, तो उसके मित्र बोल रहे थे उसके बारे में। एक मित्र ने कहा कि आप जहां भी हैं आप शांति से रहिए। तो मुझे मौका मिला दुआ करने का उसी आराधना के दौरान। तो मैंने कहा कि जहां भी है ऐसा नहीं, अगर आप इस बात को सोचते हैं कि वो कहीं भी हो सकते हैं, इसका मतलब आप भी नहीं जानते वो कहां है। बाइबल में लिखा है कि हम प्रभु के साथ रहते हैं, रहेंगे, साफ साफ लिखा है। यीशु मसीह ने कहा ना, यूहन्ना के 14 अध्याय में उसने कहा, पहले और दूसरे पद में कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जगह तैयार कर। यानी वो अगर हमारे जगह तैयार कर रहा है तो जब वो आएगा तो हमें ले जाएगा, हम उसके साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए क्या कहने की आवश्यकता है कि आप अब जो प्रभु के साथ हैं वहां से आप हमें देख रहे होंगे, हम आनंदित हैं। इसलिए जब प्रभु के भक्त इस दुनिया से रहलत कर जाते हैं, when people of God they are transformed from here to the eternal dwellings, they have gone from this world, we cry sometimes, कभी हम रोते हैं, शोक मनाते हैं, दुख होता है हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि वो चले गए, वो गैप आ गया, वो व्यक्ति चले गए। अभी हमारे 2-3 दिन पहले हमारे भाई राजन प्रभु के पास चले गए। अब मेरे पास मैसेज आया दोपहर को कि बहुत बड़ा हार्ट अटैक था उनका, और डॉक्टर ने मसाज भी करा होगा, मदद करी होगी, लेकिन वो बच नहीं पाए, चले गए। डॉक्टर ने कहा कि इज नो मोर। लेकिन मुझे पता है कि वो भाई प्रभु के पास है, क्योंकि उन्होंने प्रभु को जाना था और अपनी गवाही उन्होंने राष्ट्रपति को लिख कर दी थी। आप भी जानते इस किताब के बारे में। खैर, तो हम लोग जो प्रभु के पास यहाँ से जाते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम प्रभु के पास पहुंचाए जाएंगे। एंड देयरफॉर दिस इज अ ट्रेमेंडस एश्योरेंस एट दिस पॉइंट ऑफ पैंडेमिक। ये इस कोविड-19 के समय हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक आश्वासन है कि हम सब जो प्रभु में रहते हैं इस दुनिया में, यहां से जाने के बाद उसके पास रहेंगे। और इसलिए हम निराश नहीं होते। वी आर नॉट डिस्करेज, we don't become hopeless कि what will happen now. That conditions comes here in this world for some time. जब परेशानी आती है, कठिनाई आती है, तो हम सोचते हैं अब क्या होगा। लेकिन अगर प्रभु में हम सच्चाई से चल रहे हैं तो प्रभु सारी बाधाओं को दूर करेगा, वो हमारे जीवन को अपने मार्ग में चलाएगा। बाइबल में लिखा है ना कि जब तू आगे
जाए या पीछे मुड़े या कहीं भी जाए तो तेरे पीछे आवाज आएगी, इसी मार्ग इसमें चल। अगर वो दुनिया में आपकी सहायता कर सकता है 70, 80, 90, 100 साल तक, तो अनंत काल तक आपकी सहायता क्यों नहीं करे? He is there to guide you in his heavenly realm for eternity, because that is his homeland. ये स्वर्ग राज्य जो है ये प्रभु यीशु मसीह का अपना स्वदेश है, और जब हम उसमें विश्वास करते हैं उस स्वदेश के हम भी निवासी बन जाते हैं। तो वो क्या अपने स्वदेश को नहीं जानता? एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक बच्ची अपने घर में अपनी नानी के घर से वापस आई और बहुत एक्साइटेड थी, बहुत अच्छी से उसको रखा गया। नानी ने खूब उसको अच्छे से खिलाए पिलाए करी, फल खिलाया, खूब प्यार दिया, पैसे भी दिए, कपड़े भी दिए। अब वो अपने घर आ गई और एक दिन शाम के समय अपनी मम्मी से कहने लगी, मम्मी आपको पता है कि मेरी नानी के घर में क्या क्या है? मम्मी ने कहा, अच्छा बताओ क्या क्या है? कि वो कुआं है, वहां पर आम के पेड़ है और जामुन के पेड़ है और 2-4 वहां पर बकरी के बच्चे भी हैं, 1-2 गाय भी हैं, उनसे खेलने का मौका मिलता है। और सुबह सुबह जब नींद खुलती है तो नानी चाय बना के लाती थी, दूध देती थी, और दोपहर को अच्छा खाना बना के लाती थी, मुझे खिलाती थी, शाम को चाय पिलाती थी। आपको पता है वहां पर? आप तो डांटती रहती हैं यहाँ पर। आप किसको बोल रही है? उसे बोली जिनका घर वो है, मम्मी को बोल रही है। तो मम्मी ने कहा, बेटा मेरी बेटी, जहां की तू बड़ाई कर रहा है वहां पर मैं पैदा हुई और वहीं बड़ी, वो मेरा अपना घर है। यहां पर ठीक यही बात है। जब हम प्रभु के घर में जाने की बात सोचते हैं तो प्रभु यीशु मसीह स्वदेश है, उसका अपना घर है, वहां वो सब कुछ जानता है। इसलिए लेकिन हम वहां पर क्यों पहुंचाए जाएंगे? कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास करा, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में हो गया, इसलिए हम उस घर में रहेंगे। And we will be there for eternity, because that is the dwelling of Jesus Christ. That is his own throne, his kingdom, and that is called the kingdom of God. And we will be there for eternity. हम अनंत काल तक वहां रहेंगे। वहां के बारे में प्रकाशित वाक्य में और किताबों में बाइबल के वहां का वर्णन किया गया है, और उन सब बातों को हम जानते हैं। तो प्रभु वहां पर हमें रखेगा। कैसे रखेगा? यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि जितने उसको ग्रहण करते हैं उनको परमेश्वर अपने संतान होने का अधिकार देता है, अर्थात उन्हें जो उसको अपने जीवन का प्रभु मानते हैं। इसलिए इस पैंडेमिक के समय, इस दुख के समय, इस परेशानी के समय, जहां चारों तरफ निराशा है, जहां चारों तरफ दुख है, कठिनाई है, हम धन्यवाद देते प्रभु का कि उसने हमें उस राज्य का निवासी बना लिया है, जो कभी टलने का नहीं, जो कभी हिलने का नहीं, जो कभी समाप्त होने का नहीं है। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्फ, he who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of Almighty. हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अगर हम प्रभु के विश्वासी हैं, उसके छत्र छाया में पाए जाते हैं, तो अनंत काल तक उसके छाया में हम ठिकाना पाएंगे। वहां पर हम ऑर्फन नहीं होंगे, पर वहां पर उसके पुत्र पुत्री के रूप में उसके घर में रहेंगे और उसके संगी वारिस के समान रहेंगे। और कब तक रहेंगे? 50 साल तक, 100 साल तक, जीने अनंत काल तक। विल बी देयर फॉर इटर्निटी। देयरफॉर लिटिल परसिक्यूशन वी हैव इन दिस वर्ल्ड। थोड़े समय का दुख हमारे जीवन में, बीमारी है, तकलीफ है, कठिनाई है, कभी तंगी भी है, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा मित्रों। और इसलिए कई बार जब कोई दुनिया से चले जाते हैं ना, हम क्या कहते हैं कि उनको संसारिक दुखों से छुटकारा मिल गया। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर दुख नहीं है, वहां आंसू नहीं है, वहां गम नहीं है, वहां प्रभु की उपस्थिति है, उसके साथ साथ उसके स्वर्गदूत हैं, और हमसे पहले रहलत कर गए प्रभु के लोग हैं। वहां आनंद है, शांति है, और प्रभु के महिमा का कारण है। दूसरी बात यहां पर मूसा कहते हैं दूसरे पद में, आई विल से टू द लॉर्ड माई रेफ्यूज एंड माई फोर्ट्रेस। अब वो कहते हैं कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़। अगर आप भजन 90 देखें
उसके पहले पद में यही बात लिखा गया है जिसको मूसा कहते हैं, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। ओ लॉर्ड यू हैव बीन आवर ड्वेलिंग प्लेस इन ऑल जनरेशंस। परमेश्वर हमारे लिए, हमारे संपूर्ण पीढ़ियों के लिए वो निवास स्थान। इट्स नॉट ओनली फॉर आवर जनरेशन। नाउ वी रीड इन द वर्ड ऑफ गॉड चैप्टर 42 ऑफ जोब। हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब के 42 अध्याय में लिखा है कि अय्यूब के जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, हालांकि उसके मित्र आकर उसकी बुराई करने लग गए क्योंकि अय्यूब को दुख में देखा, तकलीफ में देखा, और लिखा अंत में 42 अध्याय के शुरू में लिखा कि तब परमेश्वर का प्रकोप उन पर भड़का और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुम्हें सजा दूंगा क्योंकि तुमने मेरे दास अय्यूब के खिलाफ बातें करी हैं, तुमने उसको नहीं समझा। अब लेकिन अगर अय्यूब तुम्हारे प्रार्थना करे, बट जोब इफ ही प्रेज फॉर यू, ऑफर सैक्रिफाइसेस फॉर यू, देन आई विल पार्डन यू। और वहां लिखा है कि परमेश्वर के वचन अनुसार उन्होंने करा, और तब लिखा है कि परमेश्वर ने अय्यूब के दिन फेर दिए। गॉड ब्लेस्ड हिज लाइफ, डबल पोर्शन ऑफ ऑल ब्लेसिंग्स। जितने पशु उसके पास पहले तो उसका डबल हो गए, और 10 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 7 लड़के थे, वो और दोबारा पैदा हो गए। और सबसे बड़ी बात जो मैं पर कहना मांगता हूं ना, जनरेशन के बारे में लिखा कि अय्यूब अपने बच्चों को 4 पीढ़ी तक देखता है। अय्यूब के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे। एंड देयरफॉर दिस हेरिटेज दैट वी एंजॉय इन द लॉर्ड इज इटर्नल। और यहां लिखा है कि परमेश्वर मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है। आई विल से दैट लॉर्ड इज माई रेफ्यूज एंड माई फोर्ट्रेस। पूरे परिवार के लिए, अनंत काल के लिए। अब वहां पर इस बात का खुलासा कैसे होता हमारे सामने? अब जैसे मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मेरे पूर्वजों ने प्रभु को जाना 4 पीढ़ी पहले, और मैं 5वीं पीढ़ी में। तो 5वीं पीढ़ी के जब लोग वहां पर रहेंगे तो हम प्रभु के पास होंगे ना। यानी अगर आपने प्रभु को जाना, अगर आप दूसरी पीढ़ी के हैं या पहली पीढ़ी के हैं, इसके बाद आपकी कितनी पीढ़ियां होंगी जब तक प्रभु का द्वितीय आगमन न हो, वो सारी पीढ़ियां प्रभु के साथ होंगी और प्रभु के साथ रहेंगी। ही इज आवर गॉड फॉर इटर्निटी। वो हमारे जीवन का प्रभु है जिसके साथ हम अनंत काल तक रहेंगे। हमारी जितनी पीढ़ियों ने प्रभु को जानना चाहा, चाहे वो 5 पीढ़ी पहले, चाहे 10 पीढ़ी पहले, चाहे 2 पहले या 3 पहले, हर एक पीढ़ी वहां के लोग होंगे। और जिस अवस्था में दुनिया से गए उसी अवस्था में आप उनको देखेंगे। जवानी की अवस्था में नहीं देखेंगे। अगर कोई 70 साल में गया तो 70 साल में आप उनको देखेंगे। अगर कोई जवानी की अवस्था में गया 40 साल का तो 24 साल की अवस्था में आप देखेंगे, क्योंकि वहां पर तो उनकी अवस्था बड़ी नहीं होगी, लेकिन वही अवस्था उनकी होगी, उनको महिमा का रूप दिया जाएगा। एंड दिस इज रेवलेशन गॉड इज गिविंग टू मी। वहां पर फिर हमारी उम्र नहीं बढ़ेगी। जिस उम्र में हम दुनिया से रहलत करें उसी उम्र में रहेंगे, लेकिन हाँ, वहां इस शरीर की तकलीफें नहीं होंगी, बीमारियां नहीं होंगी। अगर हार्ट की तकलीफ हुई तो वहां हार्ट की तकलीफ नहीं होगी। अगर ब्लड प्रेशर की समस्या आ रही से चले गए तो वहां ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी। अगर किडनी फेल हो गया तो वहां किडनी फेल नहीं होगी, क्योंकि सारी बातें वहां पर महिमामय होगी। एवरीथिंग विल बी ग्लोरिफाइड बॉडी, नो इन्फॉर्मिटीज, नो फिजिकल shortcomings will be there, but whatever age you have gone from this world will be there for eternity. And that is the beauty of eternity. We will be recognized by our face, by our own people, and moreover Jesus will recognize us because in our forehead we have the sign of His blood, which has cleansed our lives from the sin, from the condemnation. तो मित्र, दूसरी मुख्य बात है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम वहां पर होंगे और प्रभु के साथ अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर को दादा दादी नाने नहीं बोलते। परमेश्वर के कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, सारे उनके बेटे बेटियां। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। यीशु मसीह का वो पिता है, वो हमारा पिता हो जाता है। Because he belongs to Jesus as his father, he will be father to us for eternity. और ये स्वर्ग राज्य की खास बात है जिसको हमें देखने और समझने की आवश्यकता है। यह लिखा है
दूसरे पद के आखिर में वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसको भरोसा रखूंगा। बिकॉज आई हैव मेड हिम ही इज माई फोर्ट्रेस, आई विल डिपेंड अपॉन हिम, आई विल ट्रस्ट इन हिम इन हेवन। नाउ व्हेन यू गो टू एनी प्लेस, जब आप नए जगह में जाते हैं ना, तो आपको उस जगह को समझने के लिए कई महीने लग जाते हैं। मुझे याद है हम लोग जब अपने 20-21 साल की उम्र में हम बहुत जगह प्रचार करने जाते थे, 2 महीने 3 महीने रहते थे, तो 1-2 हफ्ता हमें उस जगह को समझने में लगता था भी जगह कैसी है, कितनी दुकानें हैं, लोग कैसे हैं, क्या बस कहाँ से मिलती है, ट्रेन कहाँ से मिलती है, हमें जानने को लगता है। ठीक है, स्वर्ग में अब हम अनंतता तक रहेंगे, और जैसे ही हम पहुंचेंगे, जहां पर हम जाएंगे, हमें लगेगा कि ये हमारी जगह बहुत सालों से। वहां पर आपको पहचान कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह होगा, लेकिन आपको पहचान की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपकी जगह होगी अनंत काल के लिए। आप जहां भी जाएंगे वहां पर लगेगा कि आप पहले भी यहीं थे। क्यों? क्योंकि जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास करा पृथ्वी पर, वो जगह आपकी हो गई। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द हेवनली प्लेसेस फॉर आवर लाइव्स। इस बात को आपको जानने और समझने की आवश्यकता है, और इसलिए जब हम उस पर भरोसा रखेंगे कि वो हमें जहां भी ले जाएगा, या उसके साथ हम जहां भी जाएंगे, वो हमें धोखा नहीं देगा, वो हमें धोखा नहीं देगा, वो हमारे साथ रहेगा। क्योंकि वो कहेगा कि बेटा ये तुम्हारी जगह, बेटी तुम्हारी जगह, इसको मैंने तुम्हारे लिए बनाया। तुम्हें याद है मैंने कहा था 2000 साल पहले कि मैं तुम्हारे लिए इस बात के लिए जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार कर। ये जगह तुम्हारी, पूरा राष्ट्र तुम्हारा है, पूरा देश तुम्हारा है। तुम जहां भी जाओगे तुम्हें लगेगा कि मैं इस जगह को जानता हूं, जानती हूं। तीसरी बात, थर्ड थिंग, यहां लिखा है, फॉर ही विल डिलीवर यू फ्रॉम द स्नेर ऑफ द फाउलर एंड फ्रॉम द डेडली पेस्टिलेंस। वो तुझे पहले के जाल से और महामारी से बचाएगा। अब इस बात को आज के तारीख में हम थोड़ा देखें। Let us interpret this into today's surroundings, today's happening. अब आज जो कठिनाई है, आज जो हमारे बीच में पैंडेमिक है कोरोना वायरस का, इसको महामारी कहा जाए। इट इज कॉल्ड पेस्टिलेंस, महामारी। लोग मर रहे हैं। अभी 1 महीना में नहीं हुआ कितने लोग चले गए दुनिया से। और अब जो बता रहे हैं लोग, अब जो साइंटिस्ट डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, ये गले में जाके कहीं छुप जाता है, सीधे जाता है आपके फेफड़ों में, हमारे लंग्स में चला जाता है, और धीमे धीमे करके आपके फेफड़े को जाम करता है। कल एक जवान लड़का इसके बारे में बता रहा था, मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, ना मेडिसिन मेरा फील्ड रहा है, लेकिन अच्छे से समझा रहा था कि ये कोरोना वायरस के 2 पार्टिकल्स होते हैं। एक ऊपर जो कांटे के समान दिखता है, चुभने वाला, और एक अंदर वाला। और जो दवाई दी जाती है इनको निष्क्रिय करती है दवाई, और हम ठीक हो जाते हैं। तो कोरोना वायरस को कहा गया इट इज ए पेस्टिलेंस, ये महामारी जो आज हमारे संसार को मान लो दबोचला, ये दबोचला। और निश्चित रूप से ये परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी है कि आ जाए दुनिया में, लेकिन ये ईश्वर की तरफ से नहीं है, शैतान की तरफ से। शैतान ने अय्यूब को परखना चाहा, और ईश्वर ने कहा जा परख, वो तुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। अंत में जब उसके जीवन में परेशानी आई, यहां तक कि उसके फोड़े निकले, अंत में वो कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। और फिर 19 अध्याय के 25 पद में कहता है, अय्यूब के पढ़ते हैं, मैं जानता हूं, आई नो, कि मेरा छुड़ाने वाला, मेरा मकसदी देने वाला, मखलसी देने वाला जिंदा है, और अंत में पृथ्वी पर खड़ा हुआ। ये सच्चाई है मित्र, दिस इज ट्रूथ। व्हेन यू आर कवर्ड बाय हिज विंग्स, यू हैव विटनेस दैट नथिंग विल हैपन टू मी व्हिच विल डिस्ट्रॉय माय लाइफ। और मैं आपको आज प्रभु के दास होने के नाते आज बता रहा हूं मित्रों, कि आपके जीवन में चाहे कितनी परेशानी या कठिनाई या दुख आए, बीमारी आए, आप घबराइए नहीं, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यहां लिखा है कि वो तुझे बहने के जाल से, फॉर ही विल डिलीवर यू फ्रॉम दी स्नेर ऑफ ए फाउलर, बहलिए का जाल। पुराने समय में हम देखते थे गांव देहात में, अब तो खत्म हो गया। ये जो जाल लेके, थोड़ा सा जाल होता था और उसमें
जाल नीचे और एक लकड़ी के चारों तरफ जाल होता था, और वो चिड़िया मारते थे, चिड़ी मार जाल में फंसाने का काम करते थे। और जैसे जाल में फंस गया चिड़िया, उसको कस दिया जाता था तो जाल में फंसा रहता था। इसको कहा गया है बहलिए का जाल। और शैतान आपको मुझे फंसाना चाहता है झूठ बोल बोल कर कि परमेश्वर क्या कर रहा है तुम्हारे लिए, अगर वो होता तो ये तकलीफ क्यों आ गई। जी नहीं, हम उसके बहकावे में न आए, हम उसके जवाब दे कि परमेश्वर मुझे छुड़ाने की ताकत रखता है, मैं तेरे बहकाव में नहीं आऊंगा। I think this is a very important thing for us during these days as we go through this pestilence, as we go through this coronavirus or this pandemic time. Let us not lose our heart. Let us depend upon the Lord, because He is there to rescue us for eternity, for our good. चौथी बात यहां लिखा है, चौथे पद में, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। He will cover you with his pinions, and under his wings you shall find refuge. His faithfulness is a shield and buckler. परमेश्वर के जो हथियार हैं वो हमारे जीवन की रक्षा के लिए, ये साफ साफ मूसा कहते हैं कि परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में तुझे ले ले। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को एकत्रित करती ना, आप जानते हैं गांव देहातों में जब रहते हैं, जब वहां से आते हैं जवान, ये जो शहर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि शहर में मुर्गी का कोई वो नहीं होता कि मुर्गी बच्चों के लिए घूम रही है, लेकिन गांव में हमने बहुत देखा, एक मुर्गी के 10, 12, 15, 20 बच्चे होते हैं, और मुर्गी उन बच्चों को लेकर चरने जाती है बाहर खेतों में, और जैसे ही चील ऊपर से उसको दिख जाती, उसको पता लग जाता कि चील उड़ रही है, वो आवाज निकालती है, सारे बच्चे उसके पास आ जाते हैं और मुर्गी अपने बच्चों को ढांप लेती है पंखों। ठीक परमेश्वर यही करता हमारे जीवन। जब हम प्रभु की आवाज को सुनने में सतर्क हैं, when we listen to his voice, sometimes his small voice, then he will call us, come, don't run around, and then will stretch his wings and put around us and cover us. ये उसका कार्य है। मित्रों, हम प्रभु के चरणों में इसलिए नहीं रहते कि हम बहुत अच्छे और ताकतवर हैं, पर इसलिए रहते हैं कि हमें उसकी आवश्यकता है। We don't need to come under the shadow of his wing because we are so powerful, but we need him. We need him. There are times in our lives when we become vulnerable. जब हमारे जीवन में कठिनाई है, परेशानी आकर हमें बर्बाद कर सकती है, तब उसकी आवाज को सुनने की आवश्यकता है, उसके पास आने की आवश्यकता, वो हमें ढांप लेगा। और इस समय जबकि चारों तरफ परेशानी है मित्रों, कठिनाई है, प्रभु कहता है कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ढांप लूंगा। और आज प्रातःकाल जबकि हम आराधना में आए हुए हैं, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड फॉर अस टुडे। कम नियर टू मी, आई विल कवर यू विथ माई पिनियंस, एंड अंडर माई विंग्स you will find refuge. I am faithful, and my shield and buckler will protect you. चाहे बीमारी कितनी भयंकर क्यों ना हो, चाहे तो शुरुआत हुई, अब पता लग रहा है, सुनने में आ रहा है कि यह लॉकडाउन मई महीने से शुरू होने वाला है, और हमें नहीं पता कि कब तक चलेगा। वो जब तक भी चले उसकी हमें चिंता नहीं, क्योंकि ये तो हमारी सरकार निर्णय लेती है। हम इस देश में उनके आदेशों का पालन करते, कभी भी उनके आदेशों का हम ऐसा ना करें पालन नहीं करते, ऐसा नहीं, हमें पालन करना, अभी तक पालन करा, कल भी पालन करेंगे। कौन नहीं चाहेगा कि रविवार के दिन आप यहाँ आके बैठ कर आराधना कर, सभी चाहते हैं, लेकिन अब हम नहीं आ पा रहे। खुश हैं हम सब अपने घरों में, अभी आराधना आपके घर पहुंच रही है, आज वचन घर पहुंच रहा है, आप उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हम उसकी संगति में हैं, उसके साथ चलने वाले लोग हैं, क्योंकि वो हमारा महान प्रभु है। और उसके पंखों की आड़ में जब हो लेते हैं, उसके पैरों के नीचे जब हो लेते हैं, तो हमें शरण स्थान मिलता है। परमेश्वर के पंखों के आड़ में हमारे लिए शरण है, और वो अनंतकालीन शरण है। संसार की कितनी भी ताकत लगा के कोई भी कुछ कर ले, हम जो उसके विश्वास में हैं, कभी भी उससे दूर नहीं जा सकते। इसलिए इब्रानियों के 11 अध्याय के 6 पद में लिखा है
कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये हमारा विश्वास है, इस बात को हम मानते हैं, इस पर विश्वास करते हैं। आखिरी बात, द फिफ्थ थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू टुडे इज फाउंड इन वर्स 5 and 6। यह लिखा है, You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at noonday. तू ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। अब इस आज के इस वातावरण में आप इस पैंडेमिक को, इस कोरोना वायरस की इस तमाम बातों को आप इस बात में देख सकते हैं। बिल्कुल सटीक है यहाँ पर, बिल्कुल सटीक है। क्या है यहाँ पर? यहाँ लिखा, तू रात के भय से नहीं डरेगा। रात का भय, रात अंधेरी होती है, नाइट इज ऑलवेज डार्क बिकॉज देयर इज नो सनलाइट। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, इफ यू ट्रस्ट इन गॉड, अगर उसका विश्वास आप करोगे तो आप अंधेरे से नहीं डरोगे। इवन इन द डार्कनेस ऑल्सो हिज लाइट इज देयर विद इन योर लाइफ। उसकी ज्योति आपके हृदय के अंदर है जो आपकी अगुवाई करता है और आप बिल्कुल अपने आप में निसंकोच उसमें जीवन व्यतीत करते हैं। गॉड विल नॉट लीव यू अलोन दो थिंग्स लुक gloomy and dark outside, but inside you there's a light of Jesus Christ. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। जो नगर पहाड़ पर बसा वो छिप नहीं सकता। हमारे जीवन मानो उस नगर के समान है जो पहाड़ पर बसा है। क्योंकि हमारे अंदर लाइट है, ज्योति है, वो चमकती है बाहर, लोग देख करके प्रभु को पहचानने लगते हैं। और फिर आगे लिखा है, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है तो डरेगा। तीर, पुराने जमाने में जब लड़ाई में जाते हैं ना तो तीर चलाते थे और उनके जो विरोधी होते थे उनको घायल करके मार डालते थे। और जितने सैनिक मारे जाते थे वो हार जाते थे और जिनके सैनिक कम मरते थे वो जीत जाते थे। ये लड़ाई का अनुपात होता था। अब लड़ाई खत्म हो गया। अब तो टेक्निकल समय आ गया, साइंटिफिक समय आ गया, घर में बैठे बैठे बटन दबाओ तो विनाश हो गया। तो यहां पर तीर का वर्णन है। We read about here the arrows that flies by day, but what God says कि that will not harm you। यानी वो तीर जो दिन को हम देखते हैं ना कि ये लोग यहाँ पर सुबह शाम को इन दिनों में एम्बुलेंस की आवाज आ रही है। मैं इन बच्चों से जब हमारे साथ काम करते मैं कहता देखो भाई, हर 10 मिनट में आवाज आ रही है, हर 10-15 मिनट में आ रही है, कोई ना कोई बीमार हो गया, उनको हॉस्पिटल ले जा रहा है। कल कम आवाज आई, आज तो नहीं आई, लेकिन 2 दिन पहले खूब आवाज आती रही, एम्बुलेंस जा रही है। क्यों नहीं जा रही पता आपको? हॉस्पिटल में जगह खत्म हो गई, बेड खत्म हो गए। गवर्नमेंट अपील कर रही है कि जगह बनाओ, बेड बनाओ, अस्थाई उनके लिए हॉस्पिटल बनाओ, जो कोविड-19 के लिए हॉस्पिटल हो जाए। दिल्ली शहर के सारे हॉस्पिटल में अब कोविड के लिए जगह बना दी गई। पेशेंट आ रहे हैं, एक के बाद आ रहे हैं, और इतने पेशेंट आ रहे हैं, इतने मरीज आ रहे हैं कि कुछ लोगों को तो बाहर ही सोना पड़ रहा है, वहीं ऑक्सीजन लगाया जा रहा है उनके पास। परमेश्वर हमें इस दोपहरी में उड़ने वाले तीर से बचाता है। उसने पिछले साल बचा, इस साल बचाएगा। फिर आगे लिखा है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, नॉट द पेस्टिलेंस दैट स्टॉक्स इन डार्कनेस। मरी, पेस्टिलेंस, अंधेरे में, यानी हमें पता नहीं होता क्या कहा गया इस समय। मास्क लगाओ, मास्क लगाइए, मास्क जिसको लगाने की बात कही गई है ना, मास्क लगाने की आवश्यकता। और फिर कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम 3 फुट की दूरी। और फिर कहा गया है कि हम हर समय जब आते जाते हैं तो सैनिटाइजर से अपने हाथ को धोएं। प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रोटेक्शन आपके जीवन में परमेश्वर है। उसके ताबे हो जाइए, आप सुरक्षित रहेंगे, आपको संभालेगा। यहाँ लिखा है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है, नॉर द डिस्ट्रक्शन दैट वेस्ट एट नूनडे।
ये डिस्ट्रक्शन है, ये डिस्ट्रक्शन। उनके लिए तो डिस्ट्रक्शन है जो यीशु को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, कहते हैं सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन यीशु मसीह के लोग हैं, वो इसमें तकलीफ उनको भी है, नहीं कि तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो जानते कि प्रभु हमें बचाएगा और प्रभु के पास दुआ में आता है। कितने लोग दुआ कर रहे हैं रात को, दिन को। और हमारे जो आदरणीय बिशप साहब हैं, बिशप सुबोध मंडल साहब ने एक फरमान जारी करके कहा कि हम 24 घंटे की दुआ करेंगे, चेन ऑफ प्रेयर, और 24 टीम बना दी, हर घंटे के लिए टीम। जो हमारा समय है वो है सुबह 10 बजे से 11 बजे तक प्रार्थना करने का अवसर, और कर रहे हैं प्रार्थना। और ये प्रार्थना कड़ी चल गई है पिछले कुछ दिनों से, अब चलती रहेगी जब तक प्रभु चाहेगा। प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना से हम इस मरी से बचाए जाते हैं। वी आर सेफ बिकॉज ऑफ द प्रेयर दैट वी आर मेकिंग फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन, पॉसिबल डिस्ट्रक्शन दैट हैज ऑलरेडी कम, इज नॉट गोइंग टू कम, इट इज ऑलरेडी देयर। प्रभु हमें बचाता है। इसलिए इन 5 बातों को आज हमने देखा। प्रभु हम पर अनुग्रह करे। पहली बात, जो परम प्रधान के छाया में ठिकाना पाएगा, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठता है, वो परम प्रधान के छाया में ठिकाना पाएगा। दूसरी बात, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तीसरी बात, वो तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। चौथी बात, वो तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण स्थान पाएगा। उसकी सच्चाई के लिए ढाल और झिलम हो गया। पांचवी बात, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दुपहरी में उजाड़ता है। He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of Almighty. Number 1. Number 2, I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Number 3, for he will deliver you from the snare of the fowler and from their deadly pestilence. Number 4, he will cover you with all his pinions, and under his wings you shall find refuge. His faithfulness is a shield and buckler. Number 5, you will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at noonday. परमेश्वर के वचन तो हमसे आशीष दे, हमसे बातचीत करे और हम बढ़ते चले जाए मित्रों, ताकि हमारे जीवन से जब ये समय निकल जाएगा हम कह सके परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो। आज भी बहुत से लोग पेंडेमिक के शिकार होने के बाद भी ठीक होकर घर आ रहे हैं, कुछ लोग चले जा रहे हैं दुनिया से, लेकिन जो बच रहे हैं, जो ठीक हो रहे हैं, उनकी संख्या मरने वालों से बहुत ज्यादा है। और अगर हमारा विश्वास बना रहेगा तो निश्चित रूप से वह बचाएगा और हम हर दिन उसकी महिमा करने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। Heavenly Father, I want to thank you and praise you for this morning message that has come to us. We thank you, Lord, for speaking to us this morning. And we pray, God, that let your word be continue to minister to us, Lord, so that we may grow in you. प्रभु प्रार्थना करते वचन का बीच आज जो बोया गया प्रभु हृदय के अंदर वो व्यर्थ ना जाए, पर वो हमारे हृदय के अंदर 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाए। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर कलाम के लिए, और परमेश्वर हम सबको इस कलाम के द्वारा आशीष दे। अब ये वक्त होगा कि हम अपने दूसरे गीत को हम गाएंगे परमेश्वर की आराधना के लिए। नाउ इट्स टाइम टू सिंग आवर सेकंड सॉन्ग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और जहां पर भी हम हैं अपने हदियों को भी हम इकट्ठा करेंगे, और जब चर्च प्रॉपर तरीके से खुलेंगे या ऑफिसेस खुलेंगे तो हम चर्च में आकर अपने हदियों को, अपनी भेंटों को हम जमा कराएंगे। When the church will be properly open, we will come to church and we will submit our offerings, whatever we have collected during those services. और जो गीत है वो इंग्लिश की मेथोडिस्ट हिम्नल में पाया जाता है 224 Blessed Assurance Jesus is mine, और हिंदी में 292 के अंदर ये पाया जाता है यीशु है मेरा कैसा खुशहाल। आइए हम इस गीत के दौरान परमेश्वर को महिमा दें।
of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गीत के लिए. Let us pray for the offerings. आइए हम हदियों के लिए प्रार्थना करें. Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the such wonderful blessings that you bestowed upon us through Jesus Christ. You are the master and the source of every blessings, every good blessings, Lord. As Jeremiah 29:11 says, our life, our future is in your hand. And Lord, it is marvelous to think that you are in control and you controls our life. And Lord, you provides our needs, you provides our blessings, Lord. Thank you for the such wonderful love that you have bestowed upon us, Lord. Lord, as we have offered our offerings to you, and Lord, bless each and every one of us into your mighty hand, Lord. And Lord, also this offerings may use for your glory and which fulfill the needs of the church. Thank you, God, for hearing our prayer. Once again, we exalt your name and we magnify your name on high. Thank you, God, for each and every blessings. We ask this pray in Jesus' name. Amen. अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम चर्च के अनाउंसमेंट्स को और क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के साथ हम रुखसत होंगे. और चर्च अनाउंसमेंट्स को हम पहले सुनेंगे, उसके बाद रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास के द्वारा, और क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के साथ हम आज के इस संडे की जो प्रेयर सर्विस है इसको हम
समाप्त करेंगे. Now it's time to hear the church announcements from Reverend Dr. John R. Vishwas, followed by closing prayer and benediction by him. प्रिय मित्रों, हमारे चर्च के अनाउंसमेंट इस प्रकार से है. डियर फ्रेंड्स, द चर्च अनाउंसमेंट फॉर टुडे इज फॉलोइंग. हमारी आराधना अगले रविवार को, अगर सिचुएशन ऐसी रही तो ऑनलाइन होगी और समय रहेगा सुबह 10 बजे. If next Sunday the situation remains the same, our worship will be at 10 o'clock online. Otherwise, if there is any change, by 30th of this month, we will let you know. अगर कोई परिवर्तन होगा तो 30 तारीख तक शाम तक आपको बता दिया जाए. दूसरी बात यह है कि कोई कॉटेज प्रेयर मीटिंग हम नहीं कर रहे हैं और न कोई विजिटेशन इस समय हो रहा है, क्योंकि इस समय स्थिति बहुत गंभीर है और हम चाहते हैं अपने घरों में रहें, सेफ रहें, खासकर अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, और अगर कोई बहुत जरूरी ना हो तो हम बाहर ना जाएं. Dear friends, the situation is very serious now, and if there is no need, there is no urgent work, we need to be at our home all the time and avoid going outside, because this is what we all need for our health also. And then let us follow the norms of this special COVID-19, that we always maintain social distance, wash our hands, and then also we need to be careful about everything that we are consuming, or our food and water need to be little hot so that we drink hot water and we are careful in this manner. प्रिय मित्रों, इन दिनों में जो कोविड-19 के प्रिकॉशंस है उस पर याद रखें. हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, निरंतर हाथ धोएं और ध्यान रखें कि हम जो भोजन लेते हैं वो साफ सुथरा हो और हमारे घर के चारों तरफ साफ सुथरा हो, ताकि हम स्वस्थ रहें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें. मैं सोचता हूँ कि यही अनाउंसमेंट काफ़ी है. अगर कोई ऐसी और बात होती है आपको बता दिया जाएगा. पिछले दिनों जो हमारे प्रियजन प्रभु के पास चले गए, उनके लिए हम खास प्रार्थना करें, उनके परिवारों के लिए प्रभु उनको शांति दें. और अगर जो हमारे बीच में बीमार हैं, इन दिनों में हमारे बिशप साहब के द्वारा एक चेन ऑफ प्रेयर चलाया जा रहा है और उसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट भेजी जा रही है. मैं भी उनको फॉरवर्ड करता रहता हूँ, आज भी करूँगा, तो मेहरबानी से आप याद रखें. आज रात को 11:15 बजे से कॉर्पोरेट प्रेयर होगी. बिशप साहब के द्वारा इसको आयोजित किया गया है और उसकी लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ. अगर आप चाहें तो आप भाग ले सकते हैं. वो करीब 1.25 घंटे की होगी, रात को 11:15 से 1 बजे या 1:15 बजे तक, और उसमें आपका हार्दिक स्वागत है. आप उसमें भाग ले सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, there's a chain of prayer, and especially corporate prayer is a night. We start at 11:45 p.m. tonight, which will go until 1 or 1:15 a.m. in midnight. So you are most welcome to participate in the prayer and bring your supplications and prayer requests so that we all can pray before God and experience, rejoice and be in fellowship. आइए हम प्रार्थना करें. Let us have prayer and then benediction. प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया. धन्यवाद देते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, और हमारी प्रार्थना प्रभु कि आपकी संगति हमारे साथ बनी रहे. आज के आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते. लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर टुडेज वर्शिप that we have had, and we pray God, let your presence be with us and we continue to grow in you. Thank you, Lord, for the present worship. Thank you, Lord, for our 2 assistant pastors and our youth and our church volunteers, those who have been helping us in this worship, even though this is online. And thank you, Lord, for your message, the word that has come to us. Help us, Lord, that we may be able to follow you and able to walk with you day by day. Protect us, Lord, from all
evil and dangers and this pestilence। कि परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जो वचन आज हमने सुना उसमें हम बने रहें और हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा स्तुति हो सके। प्रभु कलीसिया के एक एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, खासकर जो बुजुर्ग हैं, जो माँ बाप हैं, जो जवान और बच्चे हैं, और संडे स्कूल की जो सेवा है और हमारे जवानों की सेवा है, इन सब पर, और बहनों की सेवा है, इन सब पर आपके आशीष हो। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। आज की आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Let us receive the benediction. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us, especially those who are helping us in this worship time, especially Mr. Prakash Fika and his team, our two assistant pastors, our volunteers who are helping us in singing, and all the families of Ephesus Methodist Church, whether we are elderly, senior citizen, or parents, or youth, or children. Let your grace be upon all of us, now and forevermore. Amen.